سے ہلاکت میں اپنی جان کو نہ ڈالو. قانون بھی تقاضا کرتا ہے، لیکن ہم سستی کی وجہ سے بعض اوقات سفر چھوٹا سا ہے، 1-2 کلومیٹر پہ جانا ہے تو ہم اس میں سستی کرتے ہیں. اور بعض لوگ تو یہاں تک دیکھنے میں آتا ہے کہ ہوائی جہاز میں بھی یہ جو سیفٹی میجرمنٹ ہوتے ہیں ان کو نہیں لیتے، جیسے سیٹ بیلٹ وغیرہ باندھنا. اس پر آپ کیا درس دیں گے؟ ویسے تو کئی بار آپ سے سنتے ہیں. اتنے تھک گئے بیچارے جہاز والے، مجھے لگتا ہے کہ ان کو لفٹ نہیں ملتی. ایک تو دیکھیں لفٹ نہ ملنے کی ہم جیسوں کے لیے تو کئی وجوہات ہیں کہ جو موویز یہ دکھاتے ہیں سیفٹی کی، وہ موویز میں ایک تو میوزک بھی عورتیں بھی ہیں، تو کیا کرے، کیسے دھیان دے. یہ سننے سے تعلق میں بیان کر رہا ہوں. یا پھر وہ خود ہی مطلب کہ جو ایروسٹس ہوتی ہیں جی وہ سیفٹی بیان کا، اب ان کو کون گھر گھر کر دیکھے گا. صحیح ہے، بالکل. تو ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو پہ دیکھا جائے تو بعض چیزیں ایسی ہیں ان میں کہ اسلام تو اس کی آپ کو اجازت کیسے دے گا. لیکن اب یہ کہ آپ کے سیٹ پر سامنے جیب میں سیفٹی سے تعلق چیزیں جی ان رائٹنگ بھی ہوتی ہیں تو وہ دیکھ لی جائیں. تو اس میں مطلب کہ لوگ لاپرواہی سے کام لیتے ہیں. تو میں نے یہ کہا اب تو ایئر لائن بھی تھک گئی ہیں، اور اب میں جو اناؤنس سن رہا ہوں پہلے نہیں سنتا تھا. اناؤنسمنٹ میں تھوڑی سی چینجز آئی ہے. اچھا، اگر جب پہلے بھی سفر کرتے رہیں لیکن ہماری بات توجہ سے سنیے گا. یعنی اب وہ لوگ کان پہ نہیں، ان کو بھی اندازہ ہے کہ اب لوگ توجہ دیتے نہیں ہیں. لیکن اب ایک چیز دیکھیں جی اشفاق، کہ برسوں سے ان کا ایک ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، چھوڑا نہیں. پڑھا ہے، پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں، کم کچھ کوئی بھی طبقہ ہے، بھلے اس نے مطلب وہ فریکوینٹ ٹریولر ہے، ڈیلی بیسس پر اگر وہ ٹریولنگ بھی کرتا ہے تو بھی اس کو سننی وہی ہے. ایسا نہیں کہ نئے لوگوں کے لیے الگ آڈیو ہے اور پرانے لوگوں کے لیے الگ آڈیو ہے، سب کے لیے سیم ہے. تو یہ ایک انتظامی چیز ہوتی ہے، اس کو ایک انتظامی میزرز کا نام دے دیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو جہاز کے اندر جب بھی آپ بیٹھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ہم جہاز کی بات کریں سواری کے تعلق سے، تو اب جیسے ہم کار میں بیٹھتے ہیں یا جہاز میں بیٹھتے ہیں، دونوں طرف ایک چیز تو کامن ہے، سیفٹی. وہ ہے سیفٹی. اور وہ اس میں جو سب سے پہلے جس چیز کو کہا جاتا ہے وہ ہے آپ اپنا سیٹ بیلٹ، کار میں اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لیں، اور وہ بھی جہاز میں بھی سیٹ بیلٹ ہی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اب سیٹ بیلٹ باندھنے میں بھی کوتاہیاں ہیں، اور یہ میں کوتاہیاں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کو بہت بڑے حادثے کا شکار کر سکتی ہیں، اللہ نہ کرے. اور یہ اگر میں کہوں کہ شاید 99% لوگ اس طرح غلطی کرتے ہوں تو شاید غلط نہیں ہو. یعنی میں جو بالکل کنفرم سیٹ بیلٹ ہی باندھتے ہیں، میں نے ان کو بھی یہی مسٹیک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب گاڑی چل پڑتی ہے نا، اس کے بعد پھر یہ سیٹ بیلٹ کھینچتے ہیں. اور اب ہر وقت سیٹ بیلٹ جو ہے اس کی جو کلیپ ہے وہ مین کلیپ کے اندر لاک ہو جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. بعدوں کا پھنس جاتی، وہ گاڑی بھی چلاتے ہوں گے پھر ہاتھ بھی، یہ تو خود ہی حادثے کی طرف آپ جا رہے ہیں. بعض اوقات صرف اس وقت لگاتے ہیں جب کوئی نظر آتا ہے کہ پولیس والا تو سیٹ بیلٹ فوراً کھینچ لیتے ہیں، بعض اوقات تو صرف اٹکا کے رکھتے ہیں. تو اس میں اب وہ کیا ہوتا ہے، بیپ دیتی ہے نا گاڑی. جی جی. تو اچھا کمپیوٹر کو تو پاگل بنانا آسان ہے نا، اگرچہ کمپیوٹر بہت شارپ ہے لیکن کمپیوٹر کو پاگل بنانا آسان ہے انسان کے مقابلے میں. یہ بتا دو، کیونکہ کمپیوٹر یہ جو الیکٹرانک چیز ہے اس کو پتا ہے کہ جب تک اس کے اندر کلپ جائے گا نہیں اس نے بیپ دینی ہے. اب وہ کلپ اوپر سے آیا ہے، کلپ پیچھے سے آیا ہے، اس نے کلپ چلا جانا، اسے چپ ہو جانا ہے کہ اس کا مطلب 25-50 روپے کے لاک ملتے ہیں، آپ ڈال دیں تو وہ چپ ہی رہتی ہے. مگر میں نے اس پیسنجر سیٹ بیلٹ کی جو بیپ ہے نا، میں اس پر ہمارے تنظیمی دعوت اسلامی کے طور پر مرض کروں کہ میں نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ یہ پوچھ گچھ کا جو نظام ہے، یہ پوچھ گچھ کا نظام ہے کہ جب تک اس کو اس کی رپورٹ ملتی نہیں ہے اس نے پوچھنا بند کرنا نہیں ہے. اور بڑا سافٹلی بیپ ہلکی ہلکی بجتی رہے گی. آپ کو یوں مطلب کوئی ایسا نہیں کہ بہت زور سے شور بجانا شروع کر دے گی، اسپیڈ کے حساب سے آواز بڑھتی ہے. اگر آپ لیکن وہ بڑھتی ہے پھر وہ بڑھتی جائے گی، کم ہو جاتی ہے پھر، مگر وہ آپ کو پریشان نہیں کر رہی ہوتی. آپ بعض کو گاڑی میں پریشان بھی کرتی ہے کہ بھائی باندھو، وہ آپ کی توجہ دلا رہی ہوتی ہے. یہ بھی پوچھ گچھ ہی ہے، آپ کی توجہ آپ بہت زیادہ لمٹ کراس کر رہے ہو. تو ایک تو سیٹ بیلٹ بالکل بیٹھتے ہی باندھ لینا چاہیے، اور یہ سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے. موٹر سائیکل پہ بھی کوئی سیفٹی، جیسے ہم ہیلمٹ کے بارے میں سنتے ہیں، ہیلمٹ اور بھی کچھ سیفٹی کا ہے.
हेलमेट है, साइड हेलमेट में तो साइड मिरर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हेलमेट पहन लेते हैं आप तो हेलमेट पहनते तो हेलमेट की जो कवर है वो यहाँ तक कवर करता है ना, इस तकरीबन इतना कवर करता है, और फिर आगे शीशा होता है, तो राइट लेफ्ट तो वैसे ही नज़र नहीं आ रहा कि इधर से कौन आ रहा है। तो हेलमेट वालों के लिए तो मोटरसाइकिल पर साइड मिरर का होना, लेफ्ट राइट का मिरर का होना, शीशों का होना कानूनी तौर पे भी जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, वरना तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, अल्लाह ना करे। अच्छा, इस तरह ये सब में जल्दबाजी की बात चीज़ें होती हैं कि जैसे मोटरसाइकिल आप स्टार्ट करते हैं तो इतनी जल्दी में होते हैं कि आप साइड स्टैंड उठाना भूल जाते हैं, ये भी है। और उसमें फिर कई हादसा होने का अंदेशा रहता है। फिर बाद ऐसे मोटरसाइकिल वाले हैं हमारे बेचारे इस्लामी भाई के, उनकी मोटरसाइकिल का चेन कवर ही निकला हुआ है। आप गौर कर लें, आपके कितने मोटरसाइकिल है जिनका चेन कवर नहीं है। अब चेन कवर ना होने की वजह से कहीं चादर फंस जाती है, कभी शलवार फंस जाती है, कभी इस्लामी पहन बैठे तो बुर्का फंस जाता है, ये चेन कवर में फंस। ये साइकिल वालों के साथ ही प्रॉब्लम है, ये चेन कवर नहीं लगाते, टायर में भी फंस जाता है, टायर में फंस जाता है, तो वो फिर बुर्का समेट कर इस तरह बैठे। एक देखिए, ये सब होगा जब आप बैठे हैं, तो बैठते वक्त हर चीज़ को सेट करें ना। चलते, अच्छा चलते चलते अगर मोटरसाइकिल पर आप चेंज तो फिर वो हिलेगी तो बुर्का संभाल लेंगे, खुद ही चले गए। बिल्कुल ऐसा। तो ये जल्दबाजी की वजह से उमूमन ये चीज़ें हो जाती हैं और तवज्जो ना होने की। अब जब हादसा होता है तो फिर ये चीज़ें होती है, यार यूँ हो गया, यूँ हो गया, यूँ हो गया। तो बैठ कर बाकायदा तसल्ली के साथ सफ़र की दुआ पड़े, अल्लाह तबारक व तआला आपकी हम सब की हिफाजत फरमाए। और जब बैठ जाएं तो फिर तसल्ली से पूछ लेंगे हो गया सही। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसी इस्लामी बहन पीछे बैठी हुई हैं तो उनके साथ चादरें होती हैं, पर्दे के सारे मसाइल होते हैं और होना ही चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों देख ले। कार में भी फिर इसी तरह है कि जब बैठे तो बैठ कर पहले जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको कर लें, और उसके बाद मेरा मशवरा ये है कि कार को आप सड़क पर लाएं। मिरर्स वगैरह भी देख लें कि सही है कि नहीं। बाज़ लोग चलाते हुए मिरर सेट करते हैं बाद में। बाज़ औक़ात फैमिली गाड़ी में बैटरी होती है तो ड्राइवर साहब इतने मगन होते हैं किसी चीज़ में कि वो 3 दरवाज़ों पे क्या हो रहा है, बाज़ औक़ात एक दरवाजे से अभी सब दाखिल नहीं हुए, 2 दरवाजे बंद हुए, वो चलाना शुरू कर दें। अब वो तवज्जो का ना होना बाज़ औक़ात हाथ से एब्सेंट माइंडेड होता है, इस तरह से नुकसान पहुंचाता है। बस में भी सीट बेल्ट का कहा जाता है, बस में भी आप सीट बेल्ट बांध दें। और ये भी आप अब होता होगा, मेरे जो तजर्बा नहीं होता है लगा हुआ, कोई बांधते नॉर्मली नहीं है। अच्छा। ट्रेन में भी कहते हैं कि आप अपनी सीट पर घूमे फिरे नहीं। लोगों का ये मामूल बाज़ औक़ात होता है, गर्मी हो रही है, दरवाज़ा खोला, वहाँ खड़े हो गए, वहाँ 4-4 लोग खड़े हैं और बाज़ औक़ात हाथ निकाल के कोशिश। हादसे भी इन्हीं के होते हैं ना। तो ट्रेन वालों को भी कोई दर्स आप देंगे? ट्रेन वालों को क्या भाई, क्या दर्स होगा। ट्रेन में तो इतने मसाइल हैं यार के, मतलब जो मेरे आखिरी तजर्बात है ट्रेन के ताल्लुक से, उसमें लोगों को तकलीफ़ देने के मामलात ज़्यादा हैं। असल में ट्रेन भी है, जहाज़ भी है। अगर मैं मजमूई बात करूं आपसे, मजमूई तौर पर मैं बात करता हूं, तो हम ट्रेन में हो या जहाज़ में हो या हम अपनी कार में हो, हमें ये ज़रूर देखना है कि मेरी वजह से दूसरों को ज़हमत या तकलीफ़ तो नहीं हो रही। अशफाक भाई, मिसाल के तौर पर बारिश में अगर आप कार चला रहे हैं तो आप देखिए कि यार आपके कार से उड़ता हुआ पानी किसी को कपड़े गंदे ना, कपड़े, मतलब ये इतनी तकलीफ दे है ये। सही बात। अच्छा, एक होता है खुदा ना खास्ता आपने एहतियात तो की, लेकिन इत्तेफाक है कि गड़ा आ गया और पानी उड़ा, तो कोई अंडरस्टैंड कर लेगा, खुद आपकी अपनी गाड़ी को भी इससे नुकसान पहुंचा। लेकिन बाज़ लोग मतलब बिल्कुल चलती सड़क पर कोई गड़ा नहीं होता और देख रहे होते हैं कि पानी पड़ा हुआ है और लोग फुटपाथों पर साइडों में चल रहे हैं, उन पर इतना पानी उड़ा कर चले जाते हैं। ये इतनी मतलब तकलीफ दे। अच्छा, वेगन में बैठे हुए लोग, जो वेगन में बैठते हैं, खिड़की साइड पर बैठते हैं, इधर बैठते हैं, वो पान गुटखा खोर होते हैं। वो अल्लाह इनको हिदायत दे कि वो मतलब कि बिल्कुल पान की पीक जो है वो खिड़की से पुछ करके बाहर फेंकेंगे। अरे खुदा का बंदो, क्या कर रहे हो यार। आप देखो कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई कार पे जा रहा है, सड़क भी अगर है तो सड़क को आपके पान की थूक के लिए थोड़ी सड़क बनी थी यार। कोई तमीज़, कोई मैनर्स, कोई अखलाक, कोई किरदार है या नहीं है। आप एक तो ये चीज़ खाना ही मुझे तो मतलब अजीब व गरीब सा लगता है कि यूँ इतना मतलब कि मुंह भरेंगे, मुंह भर कर फिर ये पिच करके पान फेंकेंगे, दीवारें गंदी करेंगे, सड़क गंदी करेंगे, अपनी बिल्डिंगों की दीवारें गंदी करेंगे, सीढ़ियाँ गंदी करेंगे। अच्छा, बाद औक़ात तो ये मेरी आंखों देखी बात है, आपके भी मुशाहिदे में आई होगी कि बाकायदा डस्टबिन रखा है, डस्टबिन के साथ आपको दीवार जो है ना वो पान की पीकों से लाल मिलेगी।
असल में ये फेंकते डस्टबिन में ही है, मगर इनका से शुरू करते हैं। मगर ये ऐसा फेंकते हैं कि ये सारा मतलब ऊपर नीचे भर रहे होते हैं, फिर 2-4 छींटे कपड़ों पे भी डाल रहे होते हैं। ये अजीब व गरीब किस्म के ये लोग होते हैं। इनमें बास देखा जाए तो बास थोड़ा पढ़े लिखे टाइप के भी लोग होते हैं। अब जब निकालना है तो क्या करें, कहीं नहीं तो निकालना है तो मतलब कि ऐसा थोड़ी निकालना है कि आप मतलब कि आप अपनी गंदगी से, एक तो आपके अंदर एक कमजोरी, दूसरी आप ये चीज करते हैं, सिगरेट लोग पीते हैं, जलती सिगरेट को उठाकर ये फेंक दे। कई जगहों पर आपको आग लगने के वाकयात जो है ना वो सिगरेट की वजह से मिलेंगे। अरे लगा हुआ है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, उसके बावजूद भी ये वहां सिगरेट पियेंगे। अब एयरपोर्टों पे क्या हुआ है, स्मोकिंग एरिया अलग कर दिए गए। अब ये सारे एक कमरे पे बंद है, देखो ये सारे मतलब के सिगरेट वाले हैं, एक कमरे बंद कर देंगे। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमको लोगों में बैठ कर, क्योंकि ये कल्टिसी नहीं है लोगों में। लोगों को एक दूसरे के मतलब के वो ख्याल ही नहीं है कि मतलब हमें हमारे मैनर्स क्या होने चाहिए। लेकिन बंद कमरे में पी रहा है तो अब तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये इनको सोचना चाहिए यार, हमको कहाँ डाल दिए इन लोगों ने ना। खुले में तो नहीं पियेंगे ना। ये पी रहे थे ना, लोगों को तकलीफ हो रही थी ना, ये क्यों बनाया। आज लोग अब भी वॉशरूमों में जाके एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी पी लेते हैं। हाँ तो मगर ये सब मतलब गलत है। और अब तो मतलब वो स्मोक अलार्म रख दिए गए ना कि वो अलार्म कर देते हैं, तो अब इसमें आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अच्छा फिर आप सिगरेट पी रहे हैं इधर, अच्छा ये जहाज में तो खैर आप पी नहीं सकते, जी जी ठीक है, वो तो बहुत सख्ती है। अब ट्रेन में आप सिगरेट पी रहे हैं, अब इधर वाले को तकलीफ, उधर वाले को तकलीफ, वाले को तकलीफ। तो ये सब क्या आदमी सोचे कि यार मैं क्यों लोगों को तकलीफ दे रहा हूँ। अच्छा आपको नुकसान हो रहा है, मतलब लंबा सफर है 12-15 घंटे, क्या करे फिर वो। लोगों को तकलीफ ना दें। आप तो चलो तकलीफ में आए गए, अल्लाह आपको इससे भी नजात नसीब फरमाए जो हैं, लेकिन आप अपनी तकलीफ लोगों पर क्यों डाल रहे हैं। अब वो धुआं तो अब दूसरा हटाता रहे, आपका धुआं आप फूंकते रहो, हटाता रहे, फूंकते रहो, हटाता रहे। पैसे आपने खर्च किए, मेहनत वो कर रहा है, मजे आप ले रहे हो, जो भी मजे, ये मतलब ये बीमार मजा है, बीमार करने वाला मजा है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। सिगरेट की वजह से मरने वालों में से 10% तादाद उनकी होती है जो किसी की स्मोक की वजह से किसी धुआं हो रहा है में आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। बाकायदा जो डेथ रिपोर्ट है उसका 10% वो है जो मैंने पढ़ा। इनको तो घर के अंदर भी एहतियात करनी चाहिए। छोटे बच्चे घर के अंदर हैं और इनकी सिगरेट की आदत नहीं जाती। छोटे बच्चों के वैसे फेफड़े गुर्दे क्या बेचारे के बोलते होंगे, और बच्चा छोटा लेटा हुआ है, उस दर भी सिगरेटें पी रहे होते हैं। अब तो औरतें भी सिगरेट पीती हैं। तो अब ये चीज़ ऐसी है कि हमारे पहले तो ये बदअखलाकी कहलाती थी जी। अब गुनाह जब आपके कल्चर का हिस्सा बन गया, बदकिस्मती के साथ, अब सिगरेट क्या बोलती है यार। सही। अब तो वो शीशा चलता है, सफर में भी लेके चलते हैं, बाज ट्रेन वगैरह में। मेरे को तजर्बा नहीं है, शीशा पीते हैं, लंबा सफर है तो मजा आएगा। इसमें भी साथ वाले परेशान होते होंगे। मेरे इसका तजर्बा नहीं है। कोई सुना है कभी का इस तरह, कोई दूर दूर से किसी ने दिखाया जरूर है, लेकिन इसको क्लोजली देखने का या इस तरह मुझे अभी तक सफर में देखा है मैंने, मौका नहीं मिला। करते हैं और इस तरह से लोग हो सकता है तकलीफ में आते हो, और ये नुकसानदेह भी बहुत। तो ये सफर के दौरान जो है ना, इन चीजों का लिहाज रखना अशफाक पे बहुत जरूरी है। उसकी बात की, पान की पीक बाहर फेंकने की। बाज लोग मैनर्स वाले थोड़े से पैसेंजर, वो क्या करते हैं, एक थैली बना लेते हैं, उसमें पीक फेंकते रहते हैं। सोचो सही यार, अगर आपके सामने कोई थूक निकाले यूं अपना, थूक भी तो पाक ही है ना, कोई नापाक तो नहीं है ना। अब मैं बैठे बैठे अपना बलगम ही निकालता रहूं, थूक निकालता रहूं, तो यार आप मेरे साथ बैठे हो, आप पर बीते की क्या यार। क्या करें, अपना बाहर आदत दुरुस्त करें अपनी। हम अशफाक भाई, हम इंसानों में रहते हैं और हमें इंसानों में इंसानों वाली आदत के साथ चलना चाहिए। जानवरों का है कि भाई जो जानवर जैसे जी रहा है वैसे जी रहा है, उसको दूसरे जानवर के जीने मरने का उसके अंदाज जिंदगी की परवाह नहीं। हम इंसान है, हमें ये देखना है, सोचना है कि मेरी वजह से औरों को तकलीफ तो नहीं हो रही। अब कार की बात करें तो वो पार्किंग, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, तो वो इस तरह, तो सफ़र के अंदर इस तरह के बड़े मसाइल हैं। यानी आपने बिल्कुल साफ ही वो कर दिया कि ना बाहर फेंकना है ना अंदर फेंकना है। बिल्कुल एक बड़े तबके को जैसे वो नहीं हो गया, अब अंदर उतारेंगे तब भी नुकसान, तो छोड़ने के सिवा चारा कोई नहीं है। फिर वो जिसको नहीं छोड़ना, वो हमारी बात सुन के दर्स क्या ले, छोड़ नहीं पा रहा है। कुछ भी नहीं, मतलब कि नहीं छोड़ना है तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे छोड़ने की क्या, लेकिन लोगों को तकलीफ ना हो। एक नुस्खा दे सकते हैं, लोगों को तकलीफ ना हो। वो जज्बा रहनुमाई करेगा अशफाक भाई। आपका जज्बा होना चाहिए कि मैंने अपने किरदार को भी डैमेज, मतलब आप सोचो यार, लोग देख रहे हैं, थूकता फिर रहा है, थूक फेंकता हुआ जा रहा है, तो मतलब लोग भी तो, आपका इमेज भी तो बर्बाद हो रहा है ना। एक इंसान, एक मुसलमान अपने इमेज का
لحاظ نہیں رکھے گا، صحیح. آپ کا امیج برباد ہو رہا ہے. تو اب آپ کا اگر یہ جذبہ بن گیا کہ آپ نے اپنے امیج کو بھی بچانا ہے، عادت بھی نہیں چھوڑنی، امیج بھی بچانا ہے اور لوگوں کو تکلیف سے بھی بچانا ہے، تو پھر راستہ